A very good evening to all of you. We welcome you once again on this Unveiled Talks in the name of our Lord Jesus Christ. And we are very sorry and we want to apologize that we are a little like 5-10 minutes late. And my name is Preeti Reddy, and with my co host Ralston David. Hello, everyone. Welcome to the Unveil Talks and another exciting evening with our new guest. Amen. And we're going to have a good time. And I just want to encourage everyone who is watching right now to share this link with your family, with your friends. Let's get together this very moment and let's have an exciting time with our wonderful guest today. So let's begin this time and may God be glorified in this time. Over to you, Preeti. Yes. So once again, we I just want to repeat that Unveil Talks is having a personalized conversation with our guest. So like last time, I just want to repeat some things that we always see, worshippers worshiping and preachers preaching, but we really don't know that how they have sustained, being so long in their calling. So my before I invite my our today's guest. So my today's guest is a very good friend of mine, and like many others, I have witnessed his journey. I would tag that journey as an incredible journey because I don't know, I have really witnessed it. So I really want to thank God, Holy Spirit, and everyone who will be joining for this session. And we are already late, so not taking much time. With the clapping emoji, let's welcome Pastor Emmanuel Gollar. Hey, Hello, Pastor. Good evening. Hope you're doing good. I'm very good. Thank you so much by God's grace. And on behalf of Unveil team, I would like to welcome you on this platform. And first of all, on behalf of the Unveil team, we really want to congratulate for the newborn baby to you and Pastor Pearl Yes. as well. And Thank you hope Yeah. you're so having a much. Thank Yeah. wonderful time with her. Yeah. And God would Yes. Congratulations. really bless you all, your family. And we pray good health for Pastor Pearl and the baby as well. Thank you so much. Yes. You're Yes. welcome, Pastor. So Pastor, I have, like I said in your introduction, it's a very small introduction because I felt that you don't need any introduction. You're already people, you're already in the forefront. People know you. So I give a very small introduction of yours. So uh, I have witnessed your journey, from being no one to someone, and from being like nowhere to somewhere, we can say. So we really want to know about this journey and how you have sustained in God's calling in your life. कैसे आप अपने calling में बने रहे ना, वो जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जब कभी आपको कोई जानता नहीं था और आज आज हम देख रहे हैं कि आप वर्शिप कर रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, इधर ही नहीं, बाकी सारे देशों में भी. So over to you, Pastor. Thank you so much, Preeti. First of all, I would like to thank Mr. Preeti Reddy for inviting me to the channel and to the Unveiled Talk. And when she called and I accepted it because I know her from, I think, from childhood. I can say, like, we know each other. So yes, uh, my name is Emmanuel Golar, and as you all know that uh, I started my journey as a musician. I was a musician, so I used to play keyboard. With many worship leaders. Like, I used to just go and play keyboard with them. You name the worship leaders, I have been with them. So I've traveled with them, playing as a traveled as a keyboardist.
So that's how I started, and if I can, the first person who pushed me, like and somehow बचपन से मुझे गाने का शौक है। पता नहीं कहाँ से वो शौक अंदर आया, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे घर में, इनफैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे गाते हैं, और मतलब मम्मी उतना नहीं, मतलब मम्मी तो नहीं गाती है, लेकिन मेरी बड़ी बहन गाती है, मैं गाता हूँ, इनफैक्ट एवरीवन इन आवर हाउस सिंग्स, है ना। लेकिन पता वो एक अंदर आ गया कि मैं भी गा सकता हूँ, और मैंने बचपन से ही शुरुआत कर दिया गाना। एंड द बेस्ट प्लेस इज टू सिंग, इन चर्च, चर्च में मैं गाना शुरुआत कर दिया। और मैं बहुत छोटा था, धारावी में एक चर्च है जिसका नाम है चर्च ऑफ गॉड, चर्च ऑफ गॉड ऑफ प्रोफेसी, है ना। सो वो चर्च में हम लोग का मतलब बचपना गुजरा है, एंड मैं वहाँ से मेरी जिंदगी का सिंगिंग करियर, आई कैन से, मतलब करियर नहीं बोल सकता हूँ, जर्नी मेरा वहाँ से मैंने शुरुआत किया, और वहाँ से मैंने गाना शुरुआत किया। और उन दिनों में मैं गाना, मेरे संडे स्कूल में जो भी गीत को मैं सीखता था, और मतलब वो सारे गीतों को मैं जाकर वहाँ पर गाता था, है ना। मुझे आज आज भी वो फ्रेश याद है, वो सारे गीत मेरे बचपन में जो मैंने संडे स्कूल में सीखा है ना। सो वो गीतों को मैं संडे स्कूल में सीखता था, और वो गीत को मैं लेकर जाकर चर्च में गाता था, धारावी में। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय, मतलब बोल सकता हूँ कि मेरा सिंगिंग, मैंने मेरे बचपन से ही, लगभग मैं 3-4 साल के आसपास था, तब से ही मैं गाना शुरुआत कर दिया। होप आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, प्रीति। Yes. So, Pastor, we want to know that in your journey, when you जब आपने आपकी journey शुरू की, so आप अभी तक you're able to sustain, आप अभी तक in fact I would say आप आगे बढ़ चुके, तो कैसे परमेश्वर ने, ऐसा कौन सा वो इन टाइम या आया जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया, which has helped you to sustain? वेरी मतलब डेफिनेटली हर एक की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि बस यही मेरा, मतलब परमेश्वर के द्वारा दिया गया, क्या होता है ना, काम हो सकता है, या परमेश्वर का दर्शन बोल सकते हैं, या परमेश्वर के द्वारा जो टैलेंट दिया है उसी को लेकर हमें चलना है। मतलब परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग टैलेंट दिया है। बाइबल कहता है कि किसी, कोई प्रॉफिट है, कोई टीचर है, कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई बिशप है। सो उस तरह से मतलब लेकिन मैं एक बात बोलूं, वहां पर वर्शिपर नहीं है, लेकिन सब लोग, जितने भी लोग इस संसार में हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप इस बात को याद रखें, आप सब वर्शिपर है, क्योंकि आप सब परमेश्वर की आराधना करते हैं। खाली अलग बात यह होता है कि हम माइक पे गाते हैं और आप स्टेज के नीचे रह के गाते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि हम सब आराधक हैं। सो मैं जब बचपन में गा रहा था, और अचानक से, है ना, मतलब मैं गाना बंद कर दिया जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। एंड मुझे अच्छे से याद है, इट वाज 1993, और वो टाइम पे कुछ हुआ था, है ना। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। सो उसकी वजह से उसकी वजह से मेरे पढ़ाई में जो है वो दिक्कत आ गई। मतलब मैं पढ़ाई में थोड़ा लूज हो गया, लूज इन द सेंस, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जैसा लग रहा था, क्योंकि मैं जो उससे पहले जो स्कूल में था, वो स्कूल में मैं टीचर से हिंदी में बात कर सकता था। आई यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी विद टीचर्स। और वो स्कूल में जो था मैं, तो वो स्कूल में आई वाज द फर्स्ट रैंकर, लाइक मतलब मैं अगर फर्स्ट आया तो मेरी कजन सिस्टर जिसका नाम है एलिजाबेथ गोलार, वो सेकंड आती थी। अगर वो फर्स्ट आया तो मैं सेकंड आऊंगा। मैं थर्ड नंबर कभी जिंदगी में देखा ही नहीं हूँ। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट था पढ़ाई में, और उस वजह से म्यूजिक में भी अच्छा चल रहा था, म्यूजिक भी गा रहा था, सब हो रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो मैं लाइव नहीं बोल सकता हूँ। 93 में एक घटना हुई थी, आप सबको मालूम है, मूवीज में आपने देखे होंगे, जो ब्लास्ट वगैरह जो भी आपको पता है ना, 2 कौम के बीच में लफड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, आप सबको पता है। उस दरमियान में मेरे पिताजी ने मुझे एक स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में डाल दिया। ये जो पहले स्कूल में मैं पढ़ता था, वो स्कूल में मैं हिंदी में टीचर से बात करता था, या इंग्लिश में बात करता था, जो भी है, टूटा फूटा जो भी इंग्लिश आता था उसमें बात करता था। लेकिन जो स्कूल में मैं अभी आया था, मतलब जो स्कूल में मुझे डाला गया था, वो स्कूल में अचानक से टीचर्स लोग के साथ मुझे इंग्लिश में बात करना पड़ता था, क्योंकि वहां पे हिंदी बिल्कुल अलाउड नहीं था।
सो इस वजह से ऐसा हो रहा था कि मतलब है ना, टीचर से बिल्कुल भी आप हिंदी में नहीं बात कर सकते। तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं क्या हो रहा था कि मैं टीचर से बात नहीं कर पा रहा था, और टीचर को ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई में भी क्या हो गया हूँ, बुद्धू हो गया हूँ या ऐसा हो गया। सो इस वजह से मैं अपने क्लास को रिपीट करने लगा, मतलब है ना, फोर्थ स्टैंडर्ड को मैं रिपीट किया, है ना। एंड फोर्थ स्टैंडर्ड को जब मैं रिपीट किया तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा ये म्यूजिक मेरा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई में क्या हो रहा हूँ, और मेरे पिताजी जो है मुझे बहुत है ना मतलब मारते थे, है ना, मतलब क्योंकि मैं फेल हो रहा था वगैरह वगैरह। सो इस वजह से मैंने मेरा म्यूजिक का जो है लगभग 3-4 साल में म्यूजिक से दूर रहा। सो फ्रॉम माई आई कैन से फ्रॉम माई थर्ड क्लास, थर्ड ग्रेड, मतलब मैं थर्ड क्लास में जब था, मतलब तीसरी क्लास में, तब से लेकर 6वीं क्लास तक मैंने अपना म्यूजिक से दूर रहा, लगभग 3-4 साल या 5 साल में बोल सकता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे तीसरी से 6वीं में जाने से 3 साल ही लगता है, तो आप सोच लो कि मैं कितना साल फेल हो गया बीच में, है ना। तो मैं रिपीट कर रहा था क्लास को, तो इस वजह से मेरा रिलेशन जो है म्यूजिक से दूर हो गया था। मैं ये भी कह सकता हूँ कि परमेश्वर से भी दूर हो गया टाइप, है ना। लेकिन एक ऐसा मौका आया कि मुझे अच्छे से याद है वो दिन, और ये मैं बिल्कुल भी शर्माता नहीं बोलने के लिए। मैं 6th ग्रेड में था, और मैं 6th ग्रेड में जब था तो मैं परेल में एक चर्च है जिसका नाम है राठौड़ मेमोरियल चर्च, वो चर्च में मैं खड़ा होकर, है ना, अचानक से मेरे पिताजी ने मुझे, वहां पर एक पास्टर्स का मीटिंग हो रहा था, तो वो मीटिंग के लिए मुझे मेरे पिताजी ने, मतलब ऐसे ही जब मैं घर पे फ्री बैठा था तो फिर मुझे लेकर चले गए। तो वहां पर जब हम लोग पहुंचे थे तो वहां पर कोई नहीं था, वो हॉल खाली था, और वहां पे खाली एक कीबोर्ड पड़ा हुआ था, और वो भी खाली ऑन पड़ा हुआ था, लेकिन कोई बजा नहीं रहा था उसको। तो मैं तुरंत वो कीबोर्ड पे गया, और वो कीबोर्ड पे मैं कीबोर्ड बजाते हुए गीत को गा रहा था, और वो गीत था यीशु तू है महान तेरी जय तेरी जय। वो गीत को मैं गा रहा था कीबोर्ड पे, वहां पर कोई नहीं था। लेकिन ऐसा होता है कि वो हॉल के बाहर से एक पास्टर है, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो आज भी मतलब जिंदा है, और बहुत जाने माने गॉस्पेल सिंगर है, जाने माने टीचर है ना। तो उन्होंने मुझे आकर एक बात बोला, और उनके स्टाइल में मैं बोलता हूँ, और उन्होंने मुझे बोला, ये छोटे तू बहुत अच्छा गाता है यार। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच, है ना। और उस दिन मुझे याद आया कि मतलब है ना, मैं पहले भी गाता था, लेकिन अचानक से मेरा क्या बोलता है ना, मैंने गाना बंद कर दिया था। सो उस वजह से फिर मैंने मेरा वापस सिंगिंग जो है मैंने शुरू किया। और जैसे मैंने कहा था कि मेरा जर्नी मैंने एज अ कीबोर्डिस्ट, मतलब मुझे लोग एज अ वर्शिप लीडर या एज अ क्या बोलते हैं ना वर्शिपर नहीं जानते थे। दे ऑल यूज्ड टू नो मी एज अ कीबोर्डिस्ट, है ना। मतलब कीबोर्ड प्ले करता है ना, क्योंकि मैं बचपन में भी संडे स्कूल में मैं ही कीबोर्ड बजाता था, वीबीएस में मैं ही कीबोर्ड बजाता था, तो हर जगह मैं कीबोर्ड। करेक्ट। तो उस पीपल यूज्ड टू नो मी एज अ कीबोर्डिस्ट, कीबोर्डिस्ट। नॉट एज अ सिंगर और वर्शिपर, है ना। सो ये लेकिन एक ऐसा समय आया जब मैं अपना कॉलेज कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, डिग्री कर रहा था, इट वाज समवेयर अराउंड FY BCom, है ना, ऐसा कर रहा था। मैं सेंट एंड्रूज कॉलेज में पढ़ाई करता था, एंड्रूज कॉलेज में मैं तब था। तो ऐसा हुआ कि मुझे केटी लगा, और केटी लगने की वजह से मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो गए थे, और उसने बोला कि करना क्या चाहता है जिंदगी में, आगे क्या करना चाहता है। तब मैंने डिसाइड किया कि बॉस मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मेरा जो टैलेंट है, मतलब मेरा गाने का टैलेंट है या बजाने का टैलेंट है, और मैं लगभग 14 साल के मतलब उम्र से मैं मतलब ना गा रहा था, बजा रहा था, सब हो रहा था, सब चल ही रहा था। लेकिन समवेयर अराउंड 16 years I can say, you know, मतलब that was a specific year, you know, I came to know that I will be doing only music. I will be in singing and worshiping God. तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही ही मेरा है, और यही ही मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ। और सच बोल रहा हूँ, आज तक जिंदगी में मैंने कभी कोई काम किया है, मैंने कोई ना ही ऑफिस गया है, ना ही मैं किधर गया। एक बार कोशिश किया था, क्योंकि बहुत स्ट्रगल से हमारी लाइफ गुजर रही थी, तो मैंने कोशिश किया था एक बार जॉब लेने का, लेकिन मैंने 2 दिन में वो जॉब छोड़ दिया। तो तब मुझे पता था, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम जो है वो परमेश्वर की आराधना करना है, मेरा काम जो है वो म्यूजिक बनाना है, कंपोज करना है और गाना है। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। Oh, very nice, Pastor. And I think this is the first time you have shared your story. मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी ने ये स्टोरी सुना नहीं रहेगा इससे पहले,
और हमेशा ना जब हम लोगों को फोरफ्रंट में देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बस आ गया, या फिर इसका कॉलिंग है, चोजन है। बट बहुत लोग ये नहीं जानते द पेन which a person takes to reach over there, मतलब जो True. पेन एक पर्सन लेता है, जो दर्द एक पर्सन लेता है, और वहां पे इट टेक्स टू मच, मतलब बहुत पेन है वहां पे इवन सस्टेन करना भी। सो मेरा जो बिफोर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन पास्टर, मैं अपने फेसबुक व्यूअर्स से बोलना चाहूंगी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट टाइप इन योर क्वेश्चंस ओवर देयर, and then Ralston can know us what the question is. So पास्टर, जब आप मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप आगे बढ़ रहे थे, एंड there is a I just tell this in English. So when you are really growing, yes, everybody is happy when you're growing in the Lord, because when you said that you started as a keyboardist, now people don't know you as keyboardist. जब आप ऐसे बोल रहे हो कि आपने as a keyboardist शुरू किया, आज के दिन लोग आपको keyboardist करके नहीं जानते, वो आज आपको pastor करके जानते हैं या फिर worship leader जानते हैं. So you are not stuck over there, आप आगे भी बढ़ गए. तो आप जिन लोगों के साथ, the people whom you have worked, because I think when you go little head, people are not happy. When you're growing, yes, people are happy. जब आप बढ़ते हो तो लोग आपके आजू बाजू में आपके साथ जो बढ़ रहे हैं वो आपके साथ खुश होते हैं. लेकिन आप थोड़ा जब उनसे आगे जाते हो, या फिर you're blessed, you're everywhere, there is little glitch or insecurity, you can say. So how did you face that? आपने इस चीज को कैसे फेस किया, और how did you overcome that? मतलब इन लोगों से आपने कैसे डील किया? क्योंकि हम ना whenever we, sorry मेरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, so जब भी हम लोग बोलते हैं ना नहीं फॉरगिव करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, नहीं, तो आपने इन चीजों को कैसे ओवरकम किया या फेस किया? Surely, and now I will definitely answer this question. And it's a very good question. Every question is a good question, I can say. ये बहुत सही बात है. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इमैनुअल ऐसे ही आ गया और ऐसे ही टपक गया, है ना? या बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि हमने जो स्ट्रगल किया है और जो हमने हमारी जिंदगी में जो मैंने जो मतलब जो देखा है, झेला है, वो बहुत लोगों को नहीं पता है. और बहुत लोगों को पता भी है, जिनके साथ में मैं रहता था उनको पता है कि मैं आज कहाँ पर हूँ, मैं कैसे पहले था. ओके, लेकिन बहुत लोगों को शायद जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं आपके चैनल के द्वारा, तो दे माइट नॉट बी नोइंग अबाउट माय पास्ट एंड व्हाट ऑल आई हैव गॉन थ्रू, है ना? यस. तो आज जब मैं गाता हूँ तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं बैकअप, मतलब मैंने फ्रंट में नहीं गाया, मतलब फ्रंट माइक पे नहीं गाया. बहुत लोगों के साथ में मैं बैकअप वोकल एज अ बैकअप आर्टिस्ट या बैकअप वोकल पे गाता था या क्वायर में गाता था. ये सुना, आज मैं मतलब फ्रंट में आपको दिख रहा हूँ. लेकिन बहुत से ऐसे समय था तो मैं आज के स्पेशली जनरेशन को जब मैं बोलता हूँ कि है ना कि आपको स्ट्रगल करना है, आपको सीखना है ना, उनको सीखने की इच्छा नहीं है, उनको डायरेक्ट स्टेज चाहिए. करेक्ट. ट्रू. So लेकिन मेरा प्रॉब्लम, see, I have seen many people I can just name, but I don't want to disclose any name, मैं किसको, पहली बात कि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को गिराना नहीं चाहता, because I love everyone, because I have all my worship leaders and everyone are my friends, मैं किसी को गिराना, किसी को उठाना नहीं चाहता हूँ. परमेश्वर उनको जो दिया है उनके द्वारा वो कर रहे हैं, that is good, but you should know that there is struggle in life, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह को जानता है उसको रोज अपना क्रूस उठाकर चलना है ना? सो मेरे लिए भी मेरे पर रोज पत्थर मारा जाता है, लेकिन जब वो पत्थर मेरे पे मारा जाता है तो वो पत्थर को मैं कैसे लेता हूँ अपने ऊपर, है ना, और मैं कैसे उसको मतलब टैकल करता हूँ और कैसे मैं उससे बाहर निकलता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट. बिकॉज बाइबल, जैसे आपने क्वेश्चन बोला कि हाउ डू यू फॉरगिव, पहली बात तो मैं कभी किसी के बारे में, कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी एज का हो, कोई भी अगर मुझे गाली भी देता है, कोई भी अगर मेरे बारे में कहते ना गलत बात भी करता है, तो आपने देखा होगा, बिकॉज स्पेशली प्रीति ओ मी, है ना, मैं मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ और कभी किसी के बारे में क्या बोलते ना, मैं कमेंट पे, यू विल नेवर सी मी ऑन फेसबुक कमेंटिंग एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनी पीपल. हाँ, अगर मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आई विल
I will lift up the phone, I will call and talk personally. मैं बोलूंगा देख भाई जो तू कर रहा हो गलत है, लेकिन I will never go on social media to है ना कहता था ये डाल. See why you just need to forgive and forget because that's what God said. और मैं हमेशा जो भी मेरे बारे में गलत बोलता है मैं उसको सुनता हूँ, और भले वो मेरा दोस्त है, बिकॉज यस मतलब और ज्यादा करके हम लोग को हमारे ऊपर पत्थर कौन मारता है, जो हमको जानते हैं वो लोग ही मारते हैं. जो हमारे यस अननोन व्यक्ति कोई नहीं मारता है, जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ वो लोग ही पत्थर मारते हैं, है ना. जिसके साथ मैं काम किया रहता हूँ वो लोग ही पत्थर मारते हैं. But that doesn't mean they are like they are Satan or they are like वो लोग मसीह के बंदे नहीं है. सब मसीह के बंदे हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब हमको ये सोचना है कि बाबा हाँ है ना चलो ठीक है, हम अपना दिल बड़ा रखते हैं, है ना. हम सोचते हैं कि छोड़ो जान दो जो हो गया, है ना. ये एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ. अगर समझो मान लो कि मैं किसी को फोन कर रहा हूँ, भाई रॉल्स्टन को मैं भी फोन कर रहा हूँ और रॉल्स्टन फोन नहीं उठाता है मेरा, तो मैं कैसा सोचता हूँ, बराबर सुनिए इस बात को. मैं ये सोचता हूँ कि रॉल्स्टन शायद खाना खाता होगा, या तो रॉल्स्टन शायद है ना कहता ना या किसी कहता ना फैमिली के साथ बात करता होगा, उसका फोन चार्जिंग पे होगा. मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि रॉल्स्टन बहुत बड़ा हो गया अभी मेरा फोन नहीं उठा रहा है. मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ. मैं ये सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ. ये सोचता हूँ शायद वो अपना फोन चार्जिंग पे रखा होगा, शायद वो है ना बाथरूम में होगा, शायद वो अपने है ना किसी और से बात करता होगा. See, you need to always think positive. That's what Bible says, you know. You always need to think positive. Never in your life think negative. सामने वाला बंदा कितना भी आपके खिलाफ बात कर रहा हो, आपको एक जानना जरूरी है, उसका लेखा जोखा वो परमेश्वर को देगा. हम कोई नहीं होता है उसके खिलाफ बात करने के लिए. You just need to be humble, stay fine, you know, and forget what has happened. Yes. You want this? I need this back. I'm so sorry. My wife is here. Okay. So मैं ये बोल रहा था कि you need to forgive and forget, है ना. आपको भूलना है क्या हुआ था, है ना, और आपको लेकिन स्ट्रगल जो है हर एक के जिंदगी में आएगा. लेकिन जो आज मैं अपने जो जनरेशन के लोगों को देख रहा हूँ जो नहीं चाहते हैं, है ना, सब ये चाहते हैं कि आज मेरे पे लाइट होना चाहिए. अरे भाई वो लाइट आने के लिए स्ट्रगल तो वो लाइट आने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा ना. इमैनुअल गोलार आज डायरेक्ट स्टेज पे नहीं आया है ना. इमैनुअल गोलार का लाइफ अगर आप जर्नी देखोगे, इमैनुअल गोलार हैज बीन इनटू म्यूजिक फ्रॉम पास्ट 28 इयर्स, यू नो. अगर मैं सोया भी रहूंगा, अगर कोई मेरे सामने गा रहा है, मैं नींद में भी रहूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि वो व्यक्ति रॉन्ग गा रहा है या बेसुरा गा रहा है, या है ना सुर से हटा हुआ है, या म्यूजिक बराबर नहीं बजा रहा है ना. ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे नहीं है कि मैं आज ही आ गया हूँ, है ना. सो इट्स everyone has to go है ना. एक मिनट put that sorry it's disconnect. Okay, that's fine. Yeah, thank you. So as you know that मेरे घर पे बच्चा है, so please no perfectly fine. Yeah, so that's fine. So मैं ये बोल रहा था कि है ना जैसे कि मान लो कि अगर sorry, can you just remind me where I was, मैं किधर था, what I was sharing, है ना, regarding the spotlight, the lights and cameras. Okay, so you need to go through pain, है ना. आज की अगर तुम आज एक मान लो कि कोई गिटारिस्ट है, उसको अगर आप बोलोगे ना एक काम करो, आप आपका गिटार को लेकर आ जाओ, तो वो क्या बोलेगा मालूम है, हाँ मेरा जो असिस्टेंट है वो गिटार लेकर आएगा, मैं कल स्टेज पे आऊंगा, मैं बजाऊंगा. ये कहाँ से आया भाई. मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपनी जिंदगी में कीबोर्ड उठा के मैं जाके सीखा. मैं कीबोर्ड को लेकर जाता था अपने संडे स्कूल के अंदर, कीबोर्ड को उठाकर मैं जाता था वीबीएस के अंदर, कीबोर्ड को लेकर मैं जाता था और स्टेज पे लेके मैं ही कनेक्ट करता था, मैं ही माइक लगाता था, सब कुछ मैं करता था. लेकिन आज अगर आप बोलोगे कोई यंग जनरेशन को कि आप माइक लगा दो या आप कीबोर्ड सेट कर दो या आप प्रैक्टिस में आओ, तो कोई प्रैक्टिस में नहीं आना चाहेगा, डायरेक्ट उनको हाथ में माइक चाहिए. That is absolutely wrong, you know. Whenever, especially when you are in worship team, you know, you should know this, you know, कि whenever there is a practice session going on, you as a worshipper need to go and practice, है ना. बहुत से लोग बोलते हैं कि वर्शिप के लिए प्रैक्टिस क्या करने की जरूरत है. क्यों? हमारा परमेश्वर डिसिप्लिन वाला परमेश्वर है ना. वो ऐसे ही कुछ है ना, वो ऐसे ही कुछ भी नहीं चाहेगा, मतलब कुछ भी गा दो यार,
कैसे भी गा दो, Correct. है ना? नहीं नहीं Of नहीं course, नहीं नहीं amen. नहीं, है ना? Correct. मैं आज भी टुडे ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, है ना, फ्रैंकली टुडे ऑल्सो आई एम लर्निंग, है ना, when I sit with people who, है ना, whom I, है ना, मतलब जिसको मैं अपने लाइफ में मतलब एक ओहदा देता हूँ, मैं मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति से मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं स्पेशली और एक बात बोलना चाहूंगा, एक ऐसा समय था मैं ऐसे आड़े मतलब कहता ना इधर उधर घूमता फिरता रहता था, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी मतलब वो समय बीत चुका है, मैं उन्हीं लोगों के साथ घूमता हूँ जिनके साथ मुझे नॉलेज मिलेगा, है ना, Amen. क्योंकि बाइबल प्रोवर्ब्स कहता है, यदि तू इफ यू वॉक विथ वाइज यू विल बिकम वाइज, इफ यू वॉक विथ फूल यू विल बिकम अ फुलिश मैन, है ना, तो मैं केवल ऐसे व्यक्ति के साथ चलना चाहूंगा जो मुझे बुद्धि का मतलब है ना, जो मुझे बुद्धि दे, जो मैं Wow. through whom I can learn something, you know. Hmm. You know, if someone Yes, is teaching yes. me bad, if someone is telling bad, if someone is teaching me anything wrong, I just see that, and if I feel that is wrong, I just leave it. I don't talk bad about it. I just leave it and I move. That's it. You know, that will be my last thing. You know, I'll just leave and I will just be a safe distance. I'll keep a safe distance. Hi बोलेगा तो hi बोलेगा, praise Lord बोल तो praise Lord. That's it. उसके बाद और कुछ नहीं, है ना. So you need to know that, you know, it's not an easy thing to get what you have. मतलब आज जो मेरे पास है ना, सच में बोल रहा हूँ, मतलब ये मैंने मेरे माँ बाप से लेकर नहीं आया है ना. मैं अगर आपको आगे मैं आपको बताऊंगा, है ना, my mom and dad, they are not a rich family. We don't belong to a rich family, है ना. हम लोग तो एक धारावी के झोपड़े में, है ना, पले बड़े हैं. So it is not so, but yes, है ना, always keep focus on what God has given you. परमेश्वर हर एक को टैलेंट दिया है. No one in this world can say that, है ना, मेरे को कोई भी टैलेंट, खुदा ने मेरे को कोई भी टैलेंट नहीं दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता. No one can say that, है ना. Bible says, First Peter में लिखा है कि everyone God has given a talent, है ना. Everyone. आप शायद हो सकता है आप झाड़ू मारने में एक्सपर्ट होगा, लेकिन वो टैलेंट है. झाड़ू मारना भी एक टैलेंट है. सो मैं जितने लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप सोचते हैं मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है. आप शायद घर पे मतलब आप शायद लड़की हो सकते हैं, या है ना, आप शायद लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना. आपके जैसा बर्तन धोने वाला कोई नहीं हो सकता. आप उतना एक्सपर्ट रहेगा बर्तन धोने में, आप उतना एक्सपर्ट होगा, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा धोने में आप उतना एक्सपर्ट होगा, क्या बोलते हैं ना, खाने बनाने में. मैं नहीं हूँ उसमें. आई कांट मेक फूड, है ना, मतलब मेरे को नहीं आता खाना बनाने के लिए. बट यस, माय वाइफ कैन कुक वेरी वेल. So she has the cooking talent and she can speak well, and she's a very good preacher, you know, she can preach well. So you know, I never, matlab, God has given everyone a talent, and yes, I can sing well. Amen. You know, I can play well. I can, matlab, not, I'm not telling that I am a, क्या बोलते हैं ना, मैं वो लेवल का प्ले कर सकता हूँ. नहीं, आज भी मैं सीख रहा हूँ. So you need to have a heart, and you need to have something called never. And मैं एक secular example देना चाहता हूँ. Once I was listening to A.R. Rahman, you know, his talk. Okay. I was listening to his talk, and he said something very nice. है ना, किसी ने उनसे पूछा कि सर, है ना, आप लोग जो है संसार में पूरे दुनिया में आपको क्या बोलते हैं ना, भगवान मानते हैं. They treat you as a god of music. What do you have to say about music? So do you know what Rahman said? And I love that man. You know what he said? You know, I am not at all God in music. You know, I am still learning, because music का, है ना, जो letter उसने ऐसा बोला, MUSIC, that is what music is. मतलब ये MUSIC उन्हें बोला कि अगर आप सोचते हो कि म्यूजिक का जो MUSIC म्यूजिक जो लेटर होता है, म्यूजिक बनता है, तो मुझे खाली MU आता है. आई स्टिल लर्निंग SIC. Wow. समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes. Correct. The meaning is, आज हमारे जो अपने स्पेशली हमारे जो बिलीवर फ्रेंड्स है, जो यूथ्स है, उनको ऐसा लगता है कि दो चार कॉर्ड बजाने के लिए आया नहीं आया, तो उनको लगता है बॉस मेरा तरह कोई नहीं बजा सकता, मेरा तरह कोई नहीं गा सकता, है ना. Yes. So this is the problem, है ना. एक मिनट, ये हमारा प्रॉब्लम, ये हमारा प्रॉब्लम है हमारे लोगों का, हमारे खास करके हमारे मसीह भाई बहनों का, है ना. सो सीन ऐसा है कि कोई सीखना नहीं चाहता, लेकिन गाना चाहता है ना. जाओ इंडियन क्लासिकल सीखो. आई एम लर्निंग, यू नो, आई एम ट्रेन्ड, यू नो, आई एम स्टिल लर्निंग, यू नो, आई एम अ ट्रेन्ड सिंगर. आई एम नॉट कि मैं बहुत लोगों के पास सीखा हूँ, है ना. To name like, you know, Kirti Sagatia, he is a Bollywood, you know, singer, you know, but
people know him as a playback singer, but I know him as a worshipper. He's a very very good friend of mine. I learned a lot of things from him. मतलब जब वो गाता था तो उसको देखता था. I'm a very good observer. When I see something, कि ये प्ले कर रहा है, कीबोर्ड प्ले कर रहा है, उसका हाथ किधर जा रहा है, उसका ये कौन सा कॉर्ड, कौन सा नोट बजा रहा है, कैसा बजा रहा है ना. जब भले वो मेरे से छोटा रहेगा, लेकिन मैं उससे सीखता हूँ. लेकिन हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है, हमारे जो खास करके हमारे जो आजकल के जवान है, वो सीखना नहीं चाहते, डायरेक्ट स्टेज चाहिए उनको. That is not true. You need to work hard. अगर आप एक कीबोर्डिस्ट है, so you sit, you learn. अगर आप एक गिटारिस्ट है, you sit, you learn. आपको प्ले करना, ये स्ट्रिंग को क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, ये कॉर्ड अगर मैं ऐसा बजाऊंगा तो इसको क्या बोलता है, अगर मैं ऐसा बजाऊंगा तो इसको क्या बोलता है. You should learn. क्योंकि अगर आप देखो, हमारा जो सेक्युलर वर्ल्ड है, वो लोग जब वो लोग गाते हैं, जिसके भी वो लोग आराधना करते हैं, अननोन गॉड को, जब वो लोग आराधना करते हैं तो वो लोग बेस्ट देना चाहते हैं. they play diminished chord, augmented chord and all everything. But हमारा जो मसीह का कौम जो है, वो लोग खाली GCD बजाकर बस बहुत खुश हो जाते हैं. No. You should learn, and for that you have to go through मतलब कहते ना difficult time, है ना. आपको सीखना होगा, है ना. I have spent lots time in learning, है ना. As I told you, I'm still learning. I'm still learning. Yes, I'm still learning. I hope that, Preeti, you were getting my answer, Yeah, Pastor, very well Yeah. answered. Actually, Ralston just got cut off in between. Ralston, so I was asking Pastor that how he has, overcome the people around him. Like that was my second question, and that's how Pastor has answered it so well that I just want to precisely tell you that what Pastor Emmanuel Gola does is he just follow forget and forgive policy. Forgive and forget. Yeah. Forgive and forget policy. And very well, very good example, Pastor, you have given us. Very true, because sometimes when people don't reply to the messages, don't answer call, we think कि पता नहीं अपने आप को स्टार ही समझने लगा है. So very true, we don't take it in the positive way कि वो खाना खा रहा रहेगा या फिर busy रहेगा. And very true. So very well answered, Pastor. So Ralston, if you have any questions on the Facebook, you can ask Pastor. Over to you, because you were not there, so I have finished with 2 questions. If you have any, so you can. Just we have a question over here. It says, as a youth, how did you overcome all the things of the world, and how were you focused on the calling that the Lord has for you? Okay, nice question. As I said, it's every question is a good question. As a youth, yes, I had gone through all the things what you guys are going. अगर आपको लगता है कि आज हम दूत है, नहीं, हम एक समय में भूत भी थे, है ना. So yes, हम भी गाली देते थे, yes, हम भी चोरी करते थे, yes, हम भी झूठ बोलते थे, yes, हमने वो सब किया जो आप आज कर रहे हैं, है ना. लेकिन एक बात याद रखना है कि एक ऐसा समय आता है लाइफ में, जिस दिन आप ये डिसाइड करते हो कि बस हो गया, आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा, बस हो गया, अब आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, बस हो गया, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस हो गया, आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर से मुझको दूर रखता है ना. है ना. The day you come to know that, from that day your life get changed. And I have come across so many youths, because I love to talk to youths, especially क्योंकि जवानों के बीच में मैं सेवकाई करता हूँ. और आज भी मैं चर्च में, हमारे चर्च में जो है काफी जवान बच्चे आते हैं, because the reason they come to me is because they look up to me, as an icon, or as a pastor or whatever, So if I am not giving them, if I am teaching something and if I am not following that, so I am not a good teacher. So मैं जो उनको सिखाता हूँ, लेकिन उनको सिखाने के सिखाते मैं भी उस चीज को फॉलो करना है, मेरे को भी वो फॉलो करना है. अगर मैं उनको बोलूंगा, अभी एक जवान लड़की को मैं बोलता हूँ कि नहीं, है ना, आप उस लड़के के साथ मत घूमो, तो मतलब मुझे भी ये ध्यान रखना है कि बॉस, मेरे को भी वो नहीं काम करना है ना. अगर मैं जवान लड़के को बोलता हूँ कि यार, है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो शादीशुदा है, लड़का शादीशुदा है, और मैं उसको बोलता हूँ कि देख भाई, तेरे वाइफ के अलावा किसी और लड़की से तू फोन पे मत बात कर,
तो हम्म। फिर अगर मैं उसको सिखाता हूँ वो बात, तो मुझे भी वो चीज को है ना क्या बोलते हैं Follow फॉलो करना करना है कि बॉस हाँ मैं भी मेरे वाइफ के अलावा किसी और के साथ में मैं बोलते हैं ना आजकल ये इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब इतना ये हो गया है ना, इतना अलग अलग रीति से हम लोग है ना कुछ भी कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ. Yes. So we need to be very careful. That is the reason I usually मतलब I have stopped taking calls from है ना as you all know मतलब है ना I keep getting messages from so many people, you know, but whenever I have given all my password to my wife, you know, I have never hide anything from my wife. Everything is with her, you know. कोई लड़की का भी मैसेज आता है तो उसको मालूम पड़ता है, कोई लड़के का मैसेज आता है तो उसको मालूम पड़ता है. जरूरी नहीं है कि लड़के को खाली लड़की का ही मैसेज आना जरूरी नहीं है. आजकल लड़के भी काम हो रहा है, ठीक है ना. So you know what is happening in you know what is happening in the world today. So I say you need to be faithful, है ना. What God, you need to be faithful with God, because see आप अगर समझो, मान भी लो कि मैं अपनी बीवी को नहीं बताता, मान भी लो कि मैं अपने 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 परिवार के लोगों को नहीं बताता, लेकिन you can't cheat God, है ना. Yes. Yes. God knows each and everything, you know. But let me tell you one good thing, you know, and that is, you know, you might be thinking, अरे यार मैंने पास्ट में बहुत चोरी किया, मैंने बहुत गाली दिया, मैंने बहुत झूठ बोला, मैंने बहुत व्यभिचार का काम किया, क्या परमेश्वर मुझे है ना एक्सेप्ट करेगा? Let me tell you, God don't see your past, you know. Amen. God Amen. sees your present. Hallelujah. God sees your present, you know. आज अगर आप ये तान लेते हो और ये बोलते हो कि पास्टर जी आज के बाद जो मैं गाली देता था, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद गाली देता था, है ना. ऐसा कोई गाली नहीं है जो मैं नहीं दिया हूँ, सब गाली दिया हूँ. आपको पता है, फिर मेरे को मैं बोलने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में हूँ, है ना. सब गाली दिया हूँ, सब कुछ किया है, लेकिन जिस दिन है ना मैंने डिसाइड किया कि बॉस इसके बाद मुझे गाली नहीं देना है ना, तो फिर मैंने उसके बाद से फिर मैंने आज सो यू नीड देयर विल बी एन एनकाउंटर इन लाइफ, है ना, व्हेन यू विल कम, है ना. आपका एक मुठभेड़ होगा परमेश्वर से, है ना, रूबरू परमेश्वर से आपसे मुलाकात होगा. उस दिन के बाद है ना मतलब फिर आपका जो है मतलब आपके अंदर एक बदलाव को आप देखोगे. So that's how I, you know, I am in the world now, but I am not of the world. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. 1 minute, Ralston. I just have this one question. When you said encounter के ऊपर, तो आप बोल रहे हो कि एक एनकाउंटर होता है सबके जीवन में, दैट यू नो चेंजेस एवरीथिंग अराउंड देम एंड टू देम एज वेल, उनको भी बदल देता है. तो आपके जीवन में जो बदलाव हुआ है वो एक ही एनकाउंटर में हुआ, या क्योंकि क्या है व्हेन यू चेंज टेम्पटेशंस कीप कमिंग, वो नेस्ट बनते ही जाता है. तो ये आप हम जानना चाहते हैं कि आप एक ही टेम्पटेशन में एक ही एनकाउंटर में आप ठीक हो गए, क्या आप वापस से वो बोलते ना कोई टेम्पटेशन में गिरे, ऐसे गिरते गिरते आज आप स्टेबल हो, या एक ही एनकाउंटर में आप स्टेबल हो गए? See, that is on your personal decision, मतलब thing, you know. God speaks to you now, you know. God has given you a free will, you know. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आदम को परमेश्वर ने बोला कि देख बेटा तू सब कुछ खा, लेकिन ये मत खा. और आज हमारा प्रॉब्लम वही है, जहां पर हम जिस चीज के ऊपर लिख के रखा रहते हैं डू नॉट टच, हम उसी को टच करते जाके, राइट. सो ये आपको डिसाइड करना है कि बॉस डू नॉट टच लिखा है मतलब डू नॉट टच, मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, है ना. सो यस, मतलब I'll tell you कि मतलब क्या आज हमारे लाइफ में टेम्पटेशन नहीं आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं, 101% आते हैं. क्योंकि आप फेसबुक खोल के देखो, कोई गलत पोस्टर सामने आ जाता है. सो हमको उससे दूर कैसा रहना है ना. आप यूट्यूब खोलो, जब आपका यूट्यूब पे वीडियो चलता रहता है, नीचे से एक ऐड आ जाता है, उसके ऊपर कोई गलत पोस्टर आ जाता है या जो भी आ जाता है ना. Correct. Yep. The world is full of temptation. The world is full of temptation. But as Paul says, Lord, let me see what you want me to see. Let me hear what you want me to hear. Let me speak what you want me to speak. The day you say that, वो पोस्टर सामने भी आएगा लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं. Yes. Amen. 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 ना ऐसा होगा कि मतलब ना कोई और व्यक्ति को दिख रहा है वहां पे टेम्पटेशन का चीज, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा, है ना. आप मूवी देख रहे हो, और अचानक से कोई ऐसा शॉट आ जाता है जो आपको नहीं देखना चाहिए, है ना. पहली बात तो हमको मतलब यस आपका ये भी क्वेश्चन आते रहेंगे, बहुत लोग पूछता होगा, है ना, कि आप मूवी देखते हो. 101% मैं मूवी देखता हूँ और बिंदास होके बोलता हूँ मैं देखता हूँ, ठीक है ना.
क्योंकि लोग बोलते हैं कि पास्टर लोगों को मूवी देखना नहीं चाहिए, है ना भाई, फिर हमको वर्ल्ड का नॉलेज कहाँ से आएगा? फिर आप एक काम करो, न्यूज भी मत देखो, न्यूज में भी गलत बातों को बताते हैं, मत देखो, है ना। सो सी मैं बाइबल को फॉलो करता हूँ, और मैं इस वर्ल्ड का मतलब ये जो वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट जो रूल बनाता है उसको फॉलो करता हूँ। इस वजह से मैंने आज चर्च को नहीं चालू किया, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि you should not meet in large numbers, so because I follow, I need to follow what God has given in the word, and Bible says you need to follow the rules, है ना। जिस अधिकार के नीचे आप लोग हैं उस अधिकार को आपको सुनना है ना, आपको उस पर चलना है ना। सो मैं I follow the rules, I need to go, क्या कहते हैं ना। सो इस तरह मतलब है ना, आपके ऊपर है, it is your choice, है ना। ये आपको परमेश्वर बार बार मेरे लाइफ में बहुत से बार लोगों ने प्रोफेसी किया, है ना, बेटा जो तू कर रहा है वो, है ना, that is not your thing, God has kept something best for you, and those days I used to not think, है ना, मतलब अरे तो मैं सोचता था अरे मेरे साथ कैसा होगा, क्या होगा, अरे मैं तो मतलब एक हाफ पैंट में घूमने वाला, है ना, वही हाफ पैंट को 10 बार पहनता हूँ, है ना, मैं कहाँ दुनिया घूमूंगा यार, है ना, ऐसा मेरे माइंड में आता था। लेकिन एक ऐसा मतलब स्लोली होता ना, एक वो सारा चीज को मैं अपनी जिंदगी में होता हुआ देखा। सो एक ही झटके में पूरा नहीं मिल जाता है। सो यस, एंड टेम्पटेशन आज भी आपकी जिंदगी में, मैं हाल ही में मेरे कलीसिया में अपने कुछ जवानों से बात कर रहा था, और मैंने कहा कि जवान कितने लोग तैयार है ना बपतिस्मा लेने के लिए। तो 10, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 10 जवान में से खाली 3 लोगों ने हाथ उठाया कि अन्ना मैं तैयार हूँ। तो मैंने उन तीनों से क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं उन 7 लोगों से क्वेश्चन पूछा कि आप लोग क्यों नहीं लेना चाहते बैप्टिज्म। तो उन्होंने मुझे हम को आंसर दिया कि अन्ना क्या है ना, हम अभी कॉलेज जाते हैं ना, कॉलेज में कुछ हम गलत कर देते हैं, या ऐसा होता है कि मतलब है ना हम लोग इधर जाते हैं ना तो हम हमारे साथ गलत। तो मैंने बोला उनको, हम भी जिंदा है, हमसे भी गलत होता है, बपतिस्मा लेने के बाद भी गलत होता है, राइट। सो दैट इज नॉट एन क्या बोलते हैं ना एक्सक्यूज ऑफ नॉट टेकिंग बैप्टिज्म। यू शुड टेक बैप्टिज्म which age that does not, मतलब बाइबल नहीं सिखाते कौन से एज में आपको बैप्टिज्म लेना चाहिए। सो आप सो आजकल लोग है ना, मतलब क्या बोलते हैं ना, हर चीज के लिए एक्सक्यूज बना कर रखा है ना। मैं क्योंकि मैं टेम्पटेशन में हूँ, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं ना, मैं संसार में हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकता। बाइबल क्लियरली कहता है तुम संसार में हो परंतु तुम संसार के नहीं हो, इसके लिए बाइबल हमें दिया है। बाइबल को पढ़ो, बाइबल को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली तुम क्या बोलते हैं ना, तुम शैतानी काम को छोड़कर तुम पवित्र काम करने लग जाओगे, या गलत बातों को छोड़कर तुम क्या करोगे, क्या कहते हैं ना, पवित्र काम या होली लाइफ जीना शुरुआत कर दोगे। सो यस, टेम्पटेशन इज देयर, है ना। टेम्पटेशन आएंगे, आगे भी आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे पौलुस मुझे सिखाता है ना, क्लियरली कहता है मुझे मेरे आंख, कान और क्या बोलते हैं जबान को हमको परमेश्वर के लहू से सील करना है, ढकना है और अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना है। That's it. Wow. So over to you, Ralston. We took the final question. That was the best one, and we are really encouraged to listen from Pastor, and the way Pastor has explained everything to us. And I really feel that this answer would have blessed many, those who are watching right now. Yes. It is straight to the point and direct to the heart. Yes. So, Pastor, before we sign off, we request you to sing a song for our viewers, and after singing a song, we request you to pray for our viewers too. And over to you, Pastor. Sure. Ralston, can you say, if there is any choice, if people want any like any song request, people, because I can't see Facebook right now. If there is any, okay, yeah, I'll do that. To all our viewers right now, do you have any kind of special request from Emmanuel Golar, Pastor Emmanuel Golar? So it would be very nice if you could just type in there that comment section, and we would go ahead with that. Okay. Any youth-related question also, if they want to ask. Yeah. Any last question? Yeah. Is there any questions coming up? So I would love to, otherwise I will sing one of my favorite song. Yeah. Pastor, you can sing your one of your favorite song. Okay, definitely, yes. I will do that right away. Can
Can you hear the music properly? Yes. Yes, Roshan, yes. can you hear? Yeah, perfect. Yeah, Okay. perfect. This song is actually in Nepali, so which God has helped me to translate in Hindi. कोई नहीं है आदर के योग्य बस तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस तू राजा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा, कोई नहीं है आदर के योग्य बस एक तू खुदा, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य बस एक तू राजा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू मसीहा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू मसीहा, कोई नहीं है महिमा के योग्य बस एक तू यहोवा, कोई नहीं है बेदाग पवित्र बस एक तू मसीहा, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु, सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, हे नाम यीशु का ऊंचा, ओ नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, हे नाम यीशु का ऊंचा, वो नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है
भलाई यीशुआ। Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. And we want you to pray for us, for all our viewers out there. Sure. Yeah. Surely. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we come before the throne of grace. Thank you, Lord, for this day which you have given, which you have shown us. धन्यवाद हो परमेश्वर, आज का दिन जो आपने दिखाया है, जैसा बाइबल कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब मिलकर उसमें आनंदित है। परमेश्वर, यदि कोई हमें देख रहा है और वो निराशा में है, दुख में है, तकलीफ में है, दर्द में है, तो आज इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप उनको छू लीजिए, आप उनसे बात करें, आप उनको इसी वक्त स्पर्श करें परमेश्वर, ताकि उनके निराशा जो है वो खुशी में बदल जाए, उनका दुख जो है परमेश्वर, दर्द जो है वो आनंद में मतलब टर्न हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह जो बीमार में है, इसी वक्त आप उनको छूकर चंगाई दे परमेश्वर, ताकि यीशु मसीह आपका गवाही यीशु मसीह आने वाले दिनों में दे सके परमेश्वर। फिर एक बार जितने भी जवान बच्चे जो आज हमें सुने हैं परमेश्वर, हम मांगते हैं कि परमेश्वर जो भी हमने किया उसके द्वारा हम केवल और केवल तेरे नाम को ऊंचा उठाए हैं, और परमेश्वर हमारे जर्नी से हम ये बता रहे हैं लोगों को कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारे बातों से हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि आज भी हमारा परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारी आवाज को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। जितने भी लोग आज परमेश्वर हमारी इस अनवेल टॉक के द्वारा परमेश्वर जो बात जो सुना है परमेश्वर, वो सारे बातों को परमेश्वर वो केवल सुनने तक नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सके परमेश्वर। यदि कोई ऐसा है जो यंगस्टर है, जो म्यूजिक सीख रहा है, परमेश्वर आप उनको सहायता करे, फिर आने वाले दिनों में परमेश्वर अच्छे से सीखकर अच्छे रीति से परमेश्वर वो तेरी सेवकाई में परमेश्वर तेरी आराधना करने वाले बन सके परमेश्वर। हर एक जो वर्शिप लीडर्स है, जो वर्शिपर्स है परमेश्वर, जो मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, उनके गाने को परमेश्वर जब वो गाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे परमेश्वर, उनके मुंह से केवल गीत नहीं परंतु तेरा अभिषेक परमेश्वर उनके द्वारा उनके मुंह से निकलने दे परमेश्वर। यीशु मसीह हम गाने के लिए नहीं गाते परंतु परमेश्वर हम केवल तुझे दिखाने के लिए गाते हैं, या तेरी महिमा के लिए हम करते हैं परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा हम तुझको देते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। God bless you. Amen. Thank you so much, Pastor, for praying, and thank you so much. Tons of thanks for accepting our invitation on behalf of our Unveil team, and a big thank you to you, to Pastor Pearl, and to the family. God bless you all. And also, you want to say something? Some last? No, I believe this was the amazing time that we had together with Pastor Emmanuel. And I'm really blessed by this session, and I hope there would be many who would be blessed as well, and they would have got their answers, like as Emmanuel Pastor just shared his entire story with us. So really want to thank and bless Pastor as well for that. Thank you so much for inviting me. Thank you so much once again. Thank you so much, Preeti. Thank you so much, Ralston. Thank you so much, Pastor, and thank you. I really want to thank to all the viewers out there for joining us, and God bless you all, and stay safe, stay vigilant, and continue to be in His presence, and God bless you all. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. God bless you guys. God bless you. Take care. Thank you. Very good.